తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేని విధంగా 3 కోట్ల రూపాయలతో ఈద్గా నిర్మిస్తామని హామీ ఇచ్చారు ఉప ముఖ్యమంత్రి హోంమంత్రి మహమ్మద్ అలీ. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా భువనగిరి పట్టణంలో చెరువుకట్ట కింద 3 ఎకరాల స్థలంలో 3 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో నూతన ఈద్గా నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేసి భూమి పూజ నిర్వహించారు హోంమంత్రి మహమ్మద్ అలీ. ఎమ్మెల్యే పైలశేఖర్ రెడ్డి ఈ సందర్భంగా హోంమంత్రి మహమ్మద్ అలీ మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మైనారిటీల అభివృద్ధి కోసం పనిచేస్తున్నారు. మైనారిటీల విద్యార్థుల కోసం పాఠశాల అభివృద్ధి ఈద్గా నిర్మాణం చేస్తున్నారు అని అన్నారు. భువనగిరి పట్టణంలో ఈద్గా నిర్మాణం కోసం ఎమ్మెల్యే పైలశేఖర్ రెడ్డి ఎస్డీఎఫ్ నిధులు మంజూరు చేయడం సంతోషంగా ఉంది అన్నారు. आइए और जो है सो हमारे भाई साहब का वाला कबूल कर लीजिए समान की हाजिरी हर इनकी जायज मकासद को पूरी उम्र में दराज की एक सेकंड साहब इधर देखिए मोहम्मद महमूद अली साहब डैश पर तशरीफ फरमा करता हूँ। ये बहुत बड़ा हमारे लिए ख्वाब था भुवनगिर के लिए। बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे एमएलए पैलशेखर रेड्डी साहब ईदगाह नहीं बल्कि हमारे लिए ये कम्युनिटी हॉल भी दिया माइनॉरिटीज़ के लिए। ये बहुत बड़ी खुशी नसीब की बात है। हमारे एमएलए पैलशेखर 2 मिनट के लिए बात करने की गुजारिश कर रहा हूँ। भाइयों, मेरा दिल कमज़ोर आदमी हूँ उम्र के लिहाज से, लेकिन मैं आपका ఆలోచనతోని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తీసుకొచ్చిన సంక్షేమ కార్యక్రమాన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో భాగంగా మరి ఈరోజు గౌరవ హోమ్ మినిస్టర్ గారు మహమ్మద్ అలీ గారు మరి మొన్న జరిగిన భువనగిరి పట్టణంలో రంజాన్ వేడుకల్లో మరి గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు చూసిరు. మరి ప్రతి పండుగకు వచ్చి మరి చూస్తున్న కార్యక్రమాల్లో భాగంగా మరి మొన్న రంజాన్ నాడు మరి నిజంగా రోడ్డు మీద ఉన్న ఈద్గాలో మరి రోడ్డు మీద కూడా కూర్చొని ప్రార్థనలు చేసిన మరి మన సోదరులకు అందరూ తెలుసు. మరి చూసి మరి ముస్లిం సోదరులందరూ పిలిపించి మరి ఒక ఈద్గా పెద్దది కట్టాలి, మరి విశాలమైన గ్రౌండ్ ఉండాలన్న ఆలోచనతో మరి గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు కోరడం, అదేవిధంగా ముస్లిం సోదరులందరూ కూడా వచ్చి మరి పలానా ఈద్గా చెరువు కట్ట కింద ఉన్నది, మరి మీరు సహకరిస్తే ఖచ్చితంగా అవుతుంది అని చెప్పడం. గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు కూడా మనకు హోమ్ మినిస్టర్ గారు వర్క్ బోర్డ్ చైర్మన్ ఉన్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా అవుతుందన్న ఆలోచనతోని మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల ప్రకారం ఏదైతే చేస్తున్నారో అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో కాని పని కూడా ఈరోజు నెల రోజులలో చేసి పెట్టారంటే నిజంగా మన తండ్రి లాంటి వాడు హోమ్ మినిస్టర్ మరి వర్క్ బోర్డ్ చైర్మన్ గారు కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఫైల్ తీసి మరి ఈ వర్క్ బోర్డ్ భువనగిరికి సంబంధించిన ముస్లిం సోదరులు బాగుండాలన్న ఆలోచనతోని ముందు నడిపించి ఈ ఫైల్ను పుటప్ చేయించిన వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియ. चूँकि हर रमज़ान और हर बकरीद को जब भी ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए जाते हैं तो हमारे लिए जगह बहुत कम हो जाती है और रोडों पे और उन लोगों को नमाज अदा करने के लिए दूसरी जगह भिजवाने की मजबूरी रहती थी। तो आज मैं तहेदिल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यहाँ पर जो तशरीफ़ होम मिनिस्टर साहब, उसी के साथ साथ और हमारे चेयरमैन साहब, एमएलए साहब 1996 में ये जो 902 3 एकड़ 23 गुंटास है औक़ाफ़ की प्रॉपर्टी है। 96 में जो अदालत में सूट डाले थे और ख्वाजा बशीरुद्दीन साहब के ऊपर, और वो भी जो है हमारे माफिक हुआ, मैं ही एडवोकेट था उसी के उसमें। तो मैं आज ये बता सकता हूँ कि हर एतबार से लीगली सब कुछ
जो दिलाया गया है हमारे माफिक और हमारे भुवनगिर शहरान भुवनगिर की तरफ से आप सबको भी तहे दिल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस बात से हम भी एमएलए साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। म्युनिसिपल चेयरमैन साहब रात ना दिन बराबर टीम के साथ फिर के इस काम को अंजाम दिए। वक्फ चेयरमैन साहब बिना थकन फैल को 1 मिनट बगैर रोके के इस काम में अंजाम दिए, वरना बरसों तक होता। आज ये अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन 80 साल से ईदगाह की कमेटी बनी हुई है। कभी 2015-16 నుంచి ల్యాండ్ మీద మనం నార్మల్గా చూసుకోవడం ఇది కొద్దిగా వేరే ల్యాండ్ అప్పటి నుంచి దీని మీద నాకు బాగా ఇది ఈద్గాకు వక్ఫ్ భూమి ముస్లిం సోదరులకు కావాలి, ఇది ఈద్గా కోసం చాలా కష్టం ఉంది అంటే అప్పటి నుంచి నాకు ఐడియా ఉన్నది మీద ఎప్పటి 6-7 ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి ఐడియా ఉన్నది. సో మధ్యాహ్నం కొంత వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఇట్లా అయిపోయింది. సో తర్వాత రీసెంట్లీ మొన్న పండుగ రోజు చాలా రంజాన్ రోజు చాలా మొత్తం రోడ్డు మీదకి వచ్చేసింది. ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ మనకు కావాలని చెప్పి అప్పటిదప్పుడు డిసిషన్ తీసుకొని యాజ్ పర్ లీగల్గా ఎట్లంటే అట్లా ప్రొసీడ్ అని చెప్పి లీగల్ డాక్యుమెంట్స్ అవన్నీ చేసుకొని, కానీ ఇందుకు గొప్పతనం ఏంటంటే నాకు తెలిసి ఇంత గొప్ప హోమ్ మినిస్టర్ రాబోదు. అంత ఈజీ మనం ఫోన్ చేస్తే ఇట్లా ఫోన్ చేయగానే లేపుతాడు, రెస్పాన్స్ ఇచ్చేది గొప్ప వ్యక్తి. అసలు అంత గొప్ప వ్యక్తి నాకు తెలిసిన వరకు చూడలేదు. నార్మల్ అంటే సాదా సిదా ఉండి ప్రతి పనికి కూడా నార్మల్గా మేము టైం ఇచ్చినాం, మళ్ళీ మనమే 4 సార్లు ఫోన్ చేయాలి. నిన్న మీటింగ్ అయిపోయిన 9 సార్లు ఫోన్ చేసాం లెక్కిద్దరే. अरे अजी ना सब बुक फोन करो, होम मिनिस्टर साहब को फोन करें, फोन करते बोल के बोले मैं साहब ही हमारा फ़ोन करें। ऐसा होम मिनिस्टर नहीं देखा। और वो चेयरमैन भी कभी भी फ़ोन करे तो भी उठाए। कितना दम 4-5 साल फ़ोन करे, 9 साल फ़ोन करे, अच्छा रिस्पॉन्स हो गया। हमारे चेयरमैन साहब भी कभी भी हमारे म्यूनसिपल चेयरमैन अभी सब टीम को लेके करे कर अच्छा काम तो हो गया। अभी हाई टेंशन भी निकाल रहे पूरा, टावर्स डाल रहे पूरा। तो इसे उधर का घरों के ऊपर का HT लाइन्स है वो पूरा 33 kV लाइन का 11 kV लाइन का पूरा चले जा रहे, पूरा टाउन का अंदर टावर्स डाल रहे, उससे चले जाते हैं हमारा अच्छा। ఆల్రెడీ SDF ఉన్నది, నేను ఇదే ఇష్యూ. SDF ఎంత 2 crores వరకు ఇస్తా అని చెప్పినాం. కాబట్టి SDF దీనికి వచ్చేటట్టుగా అంటే దీనికి అలాట్మెంట్ ఈద్గా అంటే అలాట్మెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్. కాబట్టి మీరు సహకరిస్తే నాకు ఆల్రెడీ SDF ఫండ్ ఉన్నది, మీకు ఇస్తాం. దానికి ఒక 2 crores నేను ఈద్గా 2 crores రూపీస్ అదే ఎమ్మెల్యే SDF దీనికి సరిపోయేటట్టుగా మరి మీరు ఎట్లుంటుందో నాకు తెలియదు. ఆల్రెడీ ఫండ్ ఉంది నా దగ్గర, దీనికి వచ్చేటట్టుగా మెమరీలు సెర్చ్ చేయాలి. అలాగే ఏమన్నా వేరే ఫండ్ ఉంటే కూడా మీరు దేని నుంచి కానీ నా ఫండ్ శాంక్షన్ చేపిస్తాను. మీరు ఈద్గా సాధించుకుని నేను అలాగే లెటర్ ఇస్తాను, మీకు లెటర్ పంపిస్తాను, చేపిస్తాను. టెండర్ చేసుకుని ఎట్లా ఈసారి తొందరగా పండుగ చేసుకుని బాగా 2 crores ఇంకా 1 crore ఎక్స్ట్రా అయినా కానీ 3 crores అయినా పెట్టాలని అడిగినాం. మీరు శాంక్షన్ చేస్తాను కూడా. థ్యాంక్ యూ. పనిచేసే అందరికి కూడా ప్రతి ఒక్కరికి చాలా హ్యాపీ ఉంది, చాలా సంతోషం ఉంది. దీని వెనకాల మా ఎమ్మెల్యే గారికి ఎంత ఇబ్బంది పెట్టినా వాళ్ళు వెనక జరగకుండా చాలా కష్టపడి ఎవరు మీడియా పరంగా కానీ రకరకాల ఇబ్బందులు పెట్టినా వెనక ఎమ్మెల్యే గారు వెనక జరగకుండా ఆయన వంతు కృషి చేయడం మా మైనార్టీలకు మేము మరవలేని ఇది. ఇంకోటి ఎప్పటికప్పుడు ఏమైంది పొద్దుగా నుంచి సాయంత్రం దాకా 5-10 సార్లు ఫోన్ చేసి తెలుసుకొని మూమెంట్ ఏడైతే ఫైల్ ఆగిందో ఆడికి ఫైల్ మూమెంట్ ముందు తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయించారు. దాంతోపాటు ఈ హై టెన్షన్ వైర్ల కోసం 7,30,30 వార్డు నుంచి 2 వార్డులు తాతానగర్, పాడీనగర్, బంజారాహిల్స్, పాడీనగర్ 2లా ఇది అన్నీ ఈ పెట్టడం వల్ల మా మైనార్టీలకు చాలా हेल्प आई थी भाई। ये हम भूल नहीं सकते, अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। इसके लिए जो हमारे महमूद अली साहब और वक्फ चेयरमैन साहब भी जो हमारी मदद करें, हम ज़िंदगी में भूल नहीं सकते। हमारे पास कई लीडर आए, कई लीडर चले गए, लेकिन भुवनगिर में पहली मरतबा इतनी बड़ी जगह मुसलमानों के लिए जो दी जा रही, हम हमारे अल्फाज नहीं, हमारे मुसलमानों की तरफ से हम अल्फाज हम शुक्रिया नहीं अदा कर सकते। हम हर एक का शुक्रगुजार है और हमारे KCR साहब का, हमारी गवर्नमेंट का। हम कभी भी हम एक क्या हम माइनॉरिटी के लिए कुछ कर सके, बल्कि हमारे MLA साहब और हमारे जितने भी कायदीन हैं, होम मिनिस्टर साहब हों, हमारे वक्फ चेयरमैन साहब हों, हम आज काला उठा के बोल सकते हैं। उन सबका शुक्रिया। MLA साहब, लोकल MLA जो हमारे शेखर रेड्डी साहब है, उनकी जुस्तजू और ख़ासकर हमारे यहाँ के म्यूनसिपल चेयरमैन, यहाँ के काउंसलर्स पूरे मिलकर और ख़ासकर यहाँ के जो मुसलमान हैं पूरे उनकी
जद्दोजहद को देखते हुए मैं खुद आगे बढ़कर यहाँ पे हम लोग सर्वे करा के आज ये चीज़ हासिल कर लिए हैं। मैं खास कर यहाँ के भुवनगिर के पूरे मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूँ कि यहाँ पे इतनी बड़ी ईदगाह का जो सब आगाज़ हो चुका है और ईद को 4 दिन ही है हमारे पास अभी, और इंशाल्लाह ताला बकरीद की पहली ईद की नमाज यहाँ पे आप लोगों की अदा होंगी। शुक्रिया। हमारे काउंसलर जनाब ख्वाजा अजीमुद्दीन साहब जो बहुत आगे बढ़कर काम करते हैं, अल्लाह उनको मुबारक करे। और हमारे बुजुर्ग जनाब के सभी भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। और आज जितने आज हमारे पास इस प्रोग्राम में आए हुए भाइयों, यकीनन ये तेलंगाना स्टेट गंगा जमुना तहजीब की स्टेट। आज यहाँ बड़ी खुशी हुई कि भुवनगिर टाउन के अंदर अभी मुझे बताया गया, वकील साहब ने भी बताया कि नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं रहती थी, लोगों को वहाँ से भिजा दिया जाता था कि यहाँ पर जगह नहीं है। आज इतनी बड़ी जगह जैसे शहर हैदराबाद में होती है, वैसी जगह यहाँ पर आज ईदगाह के लिए अलॉट करने पर मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे आपके हरदिल अजीज MLA साहब शेखर रेड्डी साहब ने जिस तरह जुस्तजू करते हुए जगह हासिल करने की कोशिश की, यकीनन हमारे लिए यहाँ के मुकामी लोगों की और हमारे कॉर्पोरेटर हजरात की और जो लोगों ने इसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया ताकि वक्फ बोर्ड की ज़मीन एक ईदगाह ईद के लिए नमाज के लिए इस्तेमाल में आ सके। तो इतनी बड़ी ज़मीन है, 3.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं है। ऐसे ही जो भी JCP लगाकर और उसको अच्छा कर दिया। शेखर रेड्डी साहब ने कहा कि हाई टेंशन वायर हटा दिया जाएगा, बजट भी 2 करोड़ देने की बात की। हम ज़रूर इससे भी ज़्यादा खर्चा होगा, मैं अपने तरफ से भी कुछ दूंगा, मगर हमारे CM साहब से भी जाकर और कुछ जरूरत पड़े तो हम शेखर रेड्डी साहब जाकर लाएंगे। बहुत अच्छी ईदगाह, मैं समझता हूँ हैदराबाद में नहीं, तेलंगाना में नंबर 1 ईदगाह तो भुवनगिर में रहेगी। मीडिया के दोस्त भी है यहाँ पर। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ पर भी वक्फ बोर्ड की जमीन है, CM साहब ने जैसा ही तेलंगाना बना, उन्होंने उस जमीन की रजिस्ट्री साबिका में होती थी। साबिका दौर में वक्फ बोर्ड के जमीनात की रजिस्ट्री हो सकती थी, पर हमारे CM साहब ने 21A में डालकर सारे वक्फ बोर्ड के जमीनों की रजिस्ट्री रुकवाने वाले कोई लीडर है, वो KCR साहब। वक्फ बोर्ड की जमीन की हिफाजत करना है, अब जगह जगह बहुत अच्छे इस्तेमाल में आ रही है। और जब से मसीहुल्लाह साहब चेयरमैन बने हैं, वक्फ बोर्ड में बहुत से सुधार आया है। वहाँ लोग पहले बहुत मायूस होते थे, पर तेलंगाना बनने के बाद CM साहब ने वक्फ बोर्ड को एक्टिव किया। और सेकेंड टाइम में जब मसीहुल्लाह साहब बने तो बहुत ज़्यादा टाइम देकर लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं, मैं उसके लिए उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। वक्फ की ज़मीन जो होती है वो अल्लाह की ज़मीन होती है, उसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज बनता है। यकीनन हमारे बुजुर्गों ने अपनी औलाद के नाम पर नहीं दी, वक्फ के नाम पे वक्फ बोर्ड को वक्फ कर दी ज़मीन। वक्फ के मतलब ये कि अल्लाह की अमानत है, इसकी हिफाजत करना हमारा जिम्मेदारी है और हमारे CM साहब इसे पूरी तरीके से अमलावरी ला रहे हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ, तेलंगाना बहुत मुश्किल से मिला है। 14 साल जद्दोजहद करने के बाद हमारे CM साहब ने तेलंगाना लाया है। तेलंगाना लाने से पहले तेलंगाना में 10 डिस्ट्रिक्ट थे, हैदराबाद छोड़कर 9 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड थे। हम दिल्ली में CM साहब के साथ जाते थे, बहुत से पार्टी के लीडर्स जिसके पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करते थे, CM साहब से कहते थे, राव साहब ये क्या तेलंगाना बोल रहे हैं, तेलंगाना पूरा बैकवर्ड है, क्या करेंगे तेलंगाना लेकर, यहाँ पावर नहीं है, यहाँ फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, यहाँ कोई केनाल से पानी देने का इंतजाम नहीं है, यहाँ लैंड ऑर्डर बहुत खराब है, नेक्सिज्म है, यहाँ पर क्रिमिनल राइट्स होते हैं, हमेशा फिसादात होते हैं। अब ये बैकवर्ड तेलंगाना लेकर क्या करते हैं, जब तक वो अखबार में पढ़ते हैं तेलंगाना के फार्मर सुसाइड कर चुके हैं। CM साहब ने कहा एक बार बनने दीजिए आप, उसके बाद तेलंगाना के आवाम का जो जज्बा है काम करने का, लोग समझते हैं कि पहले आंध्रा के लोग काम करते हैं, वो उससे नंबर 1 काम करने वाले लोग हैं तेलंगाना की आवाम। CM साहब ने 9 साल के अंदर आप देखते हैं पूरी हिस्ट्री बदल दी है। जो पावर में हमारी स्टेट शॉर्टेज था, पावर ही नहीं मिलता था, रोजाना 4-4 घंटे पावर डाउन रहता था, इंडस्ट्रीज को 3 दिन बंद कर दिए जाते थे, जुमा हफ्ता इतवार हॉलीडे दिए जाते थे। आज सरप्लस पावर स्टेट है तो इंडिया में तेलंगाना स्टेट है। ड्रिंकिंग वाटर का इतना बड़ा प्रॉब्लम था, पूरा प्रॉब्लम हल करने वाले CM साहब कालेश्वर से पानी लाए, केनाल के जरिए हमें दिखे, मिशन भगीरथा के तहत घर घर पानी पहुंचाने वाले लीडर KCR साहब। आज हर घर में टैप है। आप देखते हैं नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में क्या हाल था, फ्लोरेसेस पानी की वजह से लोग अपने हाथ पांव माजूर हो जाते थे। CM साहब ने असेंबली में 1 साल के अंदर ऐलान किया कि आने वाले इलेक्शन से पहले तक हम पानी नहीं देंगे तो मैं कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा। ये कहने वाले बहादुर लीडर कोई तो KCR साहब। आप क्रिमिनल राइट्स
आप बताइए, हैदराबाद में हम लोग रहते हैं, हर 2 महीने 3 महीने में फिजाना दुआ करते थे। आज बताइए 9 साल से उसका 1 सेकंड भी कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। हम हमारी पुलिस को बहुत मुबारकबाद देते हैं। इंडिया में नंबर 1 पुलिस है तो हमारी तेलंगाना पुलिस है। तेलंगाना पुलिस ने खास तौर से आवाम में शौर पैदा करने के लिए फ्रेंडली पुलिस की तरह काम करते हुए आवाम में एक एतमाद हासिल किया है। सी टीम भरोसा सेंटर बनाकर आप देखेंगे हमारे पास CCTV कैमरे जो है, इंडिया में जितने कैमरे हैं उसका 64% कैमरे हमारी स्टेट के अंदर है। ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। कमांड जिस तरह जापान जर्मन में है, जिस तरह दुबई में, उससे अच्छा कमांड एंड कंट्रोल हमारे पास बना है, जहाँ पर पुलिस स्टेशन कायम किए गए, अंदर CP हैदराबाद रहते हैं। उसके साथ साथ जो आज क्राइम चल रहे हैं, खास तौर से जो साइबर क्राइम होते हैं, नारकोटिक जो लोग धंधा करते हैं ड्रग्स का, उसके लिए उसी के अंदर पुलिस स्टेशन कायम किया गया और हैदराबाद और साइबराबाद के कमिश्नर उसका डायरेक्टर बनाया गया। मेरा बोलने का मतलब है, आज हमारी गंगा जमुना तहजीब, हमारा प्यार और मोहब्बत सारे हिंदुस्तान में नंबर बने तो हमारे तेलंगाना स्टेट में। आज मैं भुवनगिर के तमाम बुजुर्ग भाइयों को, तमाम नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ। आपसे एक ही गुजारिश करता हूँ, आपका एक ही काम है आने वाले टाइम शेखर रेड्डी साहब के हाथ मजबूत करना, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। क्यों? अल्लाह ताला जब जो लोग हमारे साथ देते हैं, तो मैं शेखर रेड्डी साहब से भी कहता हूँ, मुसलमान जो वायदा करते हैं, जान भी गई तो पीछे नहीं हटते, गर्दन भी कटी तो पीछे नहीं हटते, जो अपना दोस्त जिसको बनाते हैं उसके साथ पूरा ताउन करते हैं। इलेक्शन तो आते रहते हैं, और आज आप देखिए 9 साल में हम 2 बार ही आए। किसी पार्टी की बात तेलुगु देशम ने हुकूमत की क्या दिया बताइए? कभी किए? मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए, आपके भाई को, आपके खादिम को बनाने वाले KCR साहब है। तो पहली मर्तबा हमारी स्टेट के अंदर एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान को बनाया गया। साबिका में मुझे रेवेन्यू मिनिस्टर दिया गया था। हिंदुस्तान आजाद होने के बाद पहला रेवेन्यू मिनिस्टर मेरा हमारी स्टेट का, इससे पहले कोई नहीं रहा। बाद में फिर होम मिनिस्टर रह गया। इसलिए दिया गया कि मुसलमानों को हिम्मत हो, ताकत हो, उनमें एहसास कमतरी ना हो। लोग डरे हुए रहते थे मुसलमान, पहले हमको कौन पूछने वाला है भाई, कौन देखने वाला है। अगर आज कोई देखने वाला लीडर है वो KCR साहब है। इसलिए मैं तमाम भाइयों से यही गुजारिश करता हूँ कि आप उनके हाथ मजबूत कीजिए। रमजान से, बकरीद से, रमजान से पहले तक इंशाल्लाह हैदराबाद में, तेलंगाना में नंबर 1 ईदगाह ये भुवनगिर का ईदगाह रहेगा। और सब लोग हम लोग आएंगे इंशाल्लाह। बड़े नमाज की जरूरत पड़ने पर मैं खुद भी आकर एक बार यही, मैं और मसीह भाई नमाज पढ़ कर जाएंगे। मैं सब भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ, सभी को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ास बात हमारे तेलंगाना के अंदर जो गंगा जमुना तहजीब है, आप देख ले हिंदुस्तान में क्या क्या है। बड़े मुश्किल के हालात से लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, पर हमारे तेलंगाना में देखिए प्यार और मोहब्बत और भाईचारगी के साथ जिस तरह हम लोग रहे हैं, उसकी मिसाल कहीं नहीं ले सकते रहेगा। तेलंगाना में फिसादात नहीं रहेंगे। तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम भाई मिलजुल कर जिंदगी गुजारेंगे, एक दूसरे तरक्की में एक दूसरे बराबर ताउन करते रहेंगे। आज मुझे यहाँ पर ताउन हमारे हिंदू भाइयों का, हमारे जो दिखा है मुझे, उसका मैं भाइयों का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये गंगा जमुना तहजीब आगे तक इसी तरह कायम रहेगी। और हमारे MLA साहब का, चंद्रशेखर रेड्डी साहब को, शेखर रेड्डी साहब को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और बड़े अच्छे दिल के इंसान है, बहुत मिलजुल कर रहते हैं। जब भी हमारे CM साहब भी बहुत तारीफ करते रहते हैं, कभी बताते रहते हैं MLA में, अरे शेखर साहब जो है बहुत प्यार से रहते हैं, खुद अपना खर्चा करके काम करने की कोशिश करते हैं। ये उनकी खास क्वालिटी है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, CM साहब बोले तो मेरे सामने बात दो रहा हूँ कि कई MLA से हमारे, पर शेखर रेड्डी साहब ऐसा है, कोई काम करा तो बजट का इंतजार नहीं करते, काम शुरू करवा देते ताकि आपको हर तकलीफ से महसूस कर सके। उसके लिए मैं मीडिया भाइयों का और तमाम हमारे बुजुर्गों भाई जो आए सबका फर्जन